Very good morning, dear children. Just yesterday we have to study about the rules of journalizing in double entry system. What are the steps involved when the transaction takes place in the organization? And in the books of original entry, first book, just we have to put the entry in journal. What are the steps? Now the steps involve journalizing the transactions in personal account. This one is the golden rule of commerce, by debiting and crediting the transaction. Personal account refers such accounts individually, maybe having the name of natural, artificial or representative. So in personal account, receiver is the debit when the transaction takes place in the organization. The person who receives the value, that is debited, and giver, the person who sacrifices the value of the such transactions, that is credited. In real account, what comes in? Suppose that when the transaction takes place, just we receive something. What comes in the business, that is debited, and what goes out, that is credited. In nominal account, all expenses, remember, all expenses debit and all the incomes are credit. Remember, points to be remembered. Receiver, पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है और गिवर, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है. आने वाली माल या वस्तु जो भी व्यवसाय के अंतर्गत आती है, जिसे हम ट्रांजैक्शन करते वक्त जो हमारे पास आता है, आने वाला माल या वस्तु वो हमारा डेबिट होता है, और जाने वाला माल या वस्तु जिसका आउटफ्लो होता है वो क्रेडिट होता है. जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी खर्च होते हैं बेटा, वो डेबिट होते हैं, और जितना भी इनकम होता है वो क्रेडिट होता है. ध्यान रहे, ये तीन अकाउंट के, इन्हीं के ऊपर पूरा डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है. ट्रांजैक्शंस को इसी तरह से जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है. अभी हम एक एक हेड का एग्जाम्पल दे दे करके आपको समझाएंगे. बताएं. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट started business with cash. Suppose that X is a businessman starting a business with cash, and we have to put the entry for this one. How or with the reason I would like to tell you. Explanation will be given briefly. Suppose that X a businessman, अभी मैंने आपको बताया पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है, आने वाली माल या वस्तु डेबिट होती है, जाने वाली माल या वस्तु क्रेडिट किया जाता है. सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं
सारे इनकम, जितना भी इनकम होता है वो क्रेडिट। X is the person who started business with cash 50,000. Suppose that you are the business firm. What comes in debit? जब X बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो फर्म बिजनेस और ओनर बिजनेस का बेटा दोनों अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द अकाउंटेंसी। अब आप देख रहे हैं कि व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश आपके बिजनेस में आ रहा है, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट to capital account. The first entry passed, that will be passed to capital account. Account, not full account. Debit, not full board. DR, this one is the short form, the debit. CR, this one is the short form, credit. Account, no need of writing the full spelling. You can indicate A/C account. So X started business with cash 50,000. You can write over here 50,000. Again, in debit term, this one is suppose that debit, amount debit and amount credit. Whatever the pro forma, it has been explained. So draw the line and then you have to pass the entry. सबसे पहले रोजनामचे का जर्नल का pro forma बना लेंगे, डेट ऑफ मंथ, उसके बाद पर्टिकुलर लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश क्यों डेबिट हुआ? वाई? बिकॉज ऑफ दैट जस्ट द रूल्स, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, बट व्हाट कम्स इन कैश एंटर कर रहा, सपोज दैट यू आर द फर्म एंड किस रूप में आ रहा है वो, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ओनर नहीं लिख सकते को ओनर, बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड द मनी, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंड नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, business started with cash. Suppose that 1st जनवरी 1st से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 रुपए कैपिटल कैश के रूप में लगा। फर्स्ट डे। सेकेंड जनवरी को आपने परचेज, नाउ कम टू द परचेज गुड्स फॉर कैश। 2 types of the transactions are made. One cash transactions, second one credit transaction. Purchase goods for cash. Remember, purchase always debit. परचेज हमेशा खरीदारी डेबिट होती है, क्योंकि जब आप सामान खरीदेंगे तो आपके पास क्या है, गुड्स आएगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, रूल्स देखते जाइए, व्हाट कम्स इन डेबिट, दिस वन इज द रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन डेबिट, परचेज आर गुड्स अकाउंट डेबिट, आपने उसी रूल पर किया।
परचेज आर गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश account. Not cannot be written to refers the credit. Remember, no need of writing cash account credit to cash only to indicate the credit. Clear हो गया होगा आप लोगों को? तो आप देख रहे हैं टू कैश परचेज गुड्स परचेज ऑब्लिक गुड्स या तो परचेज अकाउंट। सपोज दैट एक्स ने 20,000 रुपीज का माल खरीदा नगद, तो हमारे पास क्या आया बेटा? माल आया। तो गुड्स अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, ये फार्मूला है। आने वाली माल या वस्तु डेबिट होती है। इस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ध्यान दें, जस्ट पे अटेंशन वॉट एवर द ट्रांजेक्शन्स, just information given. Purchase goods for cash, कैश के रूप में मैंने खरीदा। तो आप देख रहे हैं what comes in debit, goods account डेबिट टू कैश। कितने रुपीज का? 20,000। हमारे पास से जा क्या रहा? कैश। तो कैश जो है क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट को टू से इसमें इंडिकेट कर देते हैं, ये नहीं लिखा जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, टू लिख दिया आपने तो इसका मतलब वो क्रेडिट हो गया 20,000। जस्ट यू कैन राइट दिस 20। रूल्स अप्लाई। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने नगद, यहाँ पर डायरेक्शन में कैश परचेज लिख देंगे तो भी आपका काम चलेगा। कैश परचेज बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश भी लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। अब इस परचेज में मैं दो चीज आपको बताने जा रहा हूं, इसका ध्यान दीजिएगा। ये चीज तो हो गई। अब 3 जनवरी को आप देखेंगे 3rd January, just goods purchased from Ram, goods purchased from Ram, whether the single word not given in the information, cash that is not given in the information। यदि कैश कहीं पर नहीं लिखा हुआ है बेटा कि हमने राम से नगद सामान खरीदा, तब तो हमसे राम से कोई मतलब नहीं है उस पर्सनल अकाउंट से। लेकिन से केवल ये दिया रहा है कि हमने माल खरीदा, केवल माल खरीदा, परचेज गुड्स, नो कैश नो पर्सन ने। सपोज दैट वन इज द कैश परचेज। अगर जो इस तरह से लिखा हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि वो नगद खरीदा। यदि नाम दे दिया कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम और कैश नाम कहीं पर नहीं है, तब उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन सपोज किया जाएगा। दैट वन इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹20,000। तो आपने देखा व्हाट कम्स इन डेबिट, इसमें रियल एंड पर्सनल अकाउंट दोनों साथ चल रहे हैं। व्हाट कम्स इन डेबिट, वो गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट में, गुड्स अकाउंट डेबिट। अब हमने राम से उधार सामान खरीदा है, तो पैसा तो उसके हमारे पास से कुछ जा नहीं रहा, केवल सामान आ रहा है। तो देने वाला गिवर इज द क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आप जानते हैं देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। तो यहां पर टू राम लिख देंगे, टू राम 20,000 का
purchased from Ram on credit. Being goods purchased from Ram on credit. Clear? Sells. Sells. Goods sold 20,000. For example, goods sold 20,000. हमने 20,000 का सामान बेचा. क्लियर? 20,000 का सामान बेचा, न किसी व्यक्ति का नाम है न कैश का नाम है. तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को कैश ट्रांजैक्शन ही एज्यूम किया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का तो नाम है नहीं. और वो goods sold 30,000. तो जब goods सेल करेंगे आप, तो सामान आपके पास से जाएगा और आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा. दिस वे यू कैन राइट कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. You cannot write just the sales account credit. Remember, sale हमेशा क्रेडिट होता है. Sales always credited. Clear? Cash account debit to sales. 30,000. Being goods sold on cash, sold for cash. Being goods sold for cash. This one is the narration. Now again on sales. Sales credit. Goods sold to Mohan 20,000. Goods sold to Mohan 20,000. No a single word used in such information, such transaction for cash. कैश नहीं लिखा हुआ है और नाम दिया गया है सोहन का. तो आप देखें यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में goods sold to Mohan. Mohan is the receiver. Mohan is the receiver. तो receiver always debit. पाने वाला व्यक्ति मोहन है. मोहन debit to sales. Sales always credit. या to goods account. Sales are goods. Remember, purchase always debit, sales always credit. So मोहन रिसीवर है क्योंकि हम उधार सामान बेचे. Being goods sold to Mohan on credit 20,000. 20,000. Simple journal entry. Just you can adopt the simple way. Now next one, just I would like to tell you, my dear, transactions receiving cash or paying cash. When the payment are made in transactions, suppose that cash received from Ram
cash received from Ram such and such and so on, कोई भी नाम हो सकता है। received cash from Ram, then what comes in debit? आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू Ram, what comes in debit? कैश हमारे पास आ रहा है और देने वाला कौन है? गिवर ऑलवेज क्रेडिटेड, गिवर नॉन। दिस वन इज द रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शंस। कैश अकाउंट डेबिट 10,000. Suppose that you have received cash 10,000 from Ram. Cash account debit to Ram. On receiving the cash, being cash received from Ram, बस सब हर transaction, each and every transactions just depend on the rules of the journalizing. What comes in debit, what goes out credit, receiver debit, giver credit, expenses debit, and incomes credit. Second one, paid to X. Paid to X. आपने कोई पार्टी है X या Y या Z, किसी को आपने पेमेंट दिया, तो रिसीवर इज द डेबिट, पाने वाला व्यक्ति डेबिट, एक्स डेबिट टू, आपके पास से क्या जा रहा है? कैश टू कैश। सपोज दैट 5,000 का पेमेंट आपने दिया एक्स को, यानी कि 5 डबल एंट्री सिस्टम, वन अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड अदर इज डेबिट। Now come to the expenses. Salary paid, rent paid, किसी भी तरह का खर्च होगा तो खर्च हमेशा डेबिट होता है।